حضرت مسلم گورنر ہاؤس پہنچ گئے تھے اور یہ محمد بن اشعث جو تھا اس نے امان لی تھی کہ آپ کے لیے امان ہے۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا جس سے وہ لوگ پانی پی رہے تھے، چونکہ حضرت مسلم بن عقیل زخمی کافی تھے، پیاس بھی بہت شدت کے ساتھ لگی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دیجیے، پیاس بہت شدت کے ساتھ لگی ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور کہا آپ کے لیے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ملے گا۔ ایک محب اہل بیت تھے، وہ آگے بڑھے اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ مسلم بن عقیل کو ایک پیالہ پانی دے دو، پانی کے لیے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس غلام نے مسلم بن عقیل کو پانی دیا۔ آپ نے جیسے ہی پانی پیا تو چونکہ زخم زیادہ تھا، چکے تھے، خون بھی کٹا ہوا تھا تو خون بہ رہا تھا، تو پانی جیسے ہی منہ میں گیا تو وہ خون میں تبدیل ہو گیا، خون میں مل گیا، آپ نے کلی کر دی۔ دوبارہ پیا پھر وہ خون میں بدل گیا، پھر کلی کر دی، پھر آپ کے دو دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے، اس پیالے میں گر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ شاید یہ پانی میرے نصیب میں نہیں ہے، اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ تو اب محمد بن اشعث اندر گیا، جانے کے بعد ابن زیاد سے اجازت چاہیے کہ مسلم بن عقیل کو لے آئے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کے لیے امان ہے۔ تو ابن زیاد بہت آگ بگولا ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ امان تم نے کیوں لے لی، ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا؟ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم مسلم بن عقیل کو یہاں گرفتار کر کے لاؤ، امان کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم امان دے کے آئے۔ یہ جو ان کو اندر جا کے وہ کچھ بھی نہیں بول پایا، مسلم بن عقیل کو اس نے کہا کہ چلیے۔ حضرت مسلم بن عقیل اندر آئے، ابن زیاد کے سامنے ہوا، چونکہ جیسے ہی لوگ ابن زیاد کے سامنے جاتے تو اسے سلام کرتے، مسلم بن عقیل نے سلام نہیں کیا۔ تو ایک کہنے لگا کہ آپ نے ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ سلام اس لیے نہیں کیا، اگر یہ میرے قتل کا خواہاں ہے، اگر یہ چاہتا ہے میرا قتل کر دے تو میں اس کو سلام نہیں کروں، اگر یہ مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کا ارادہ میرے قتل کا نہیں ہے، تو پھر اس پر کافی سلام ہے۔ بات چلنے لگی، حضرت مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کا اپنا سامنا گورنر ہاؤس میں، حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہیں، تنے تنہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو کہتا تھا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ آخر تم نے یہ نظام درہم برہم کیوں کر دیا کہ یہاں کا، آپ کے آنے سے ہی یہاں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میرے آنے سے یہاں نظام درہم برہم نہیں ہوا، کیونکہ مجھے تو بلایا گیا تھا، مہمانی کے طور پر ہم آئے تھے، ہمارے آنے سے کب نظام درہم برہم ہونے لگا؟ نظام درہم برہم تو نے آ کے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، بے گناہوں کو سزائیں دی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ آج دیکھ ہم پر بھی تو نے وار کیا، میرے جان کا تو دشمن بنا ہوا ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو نظام درہم برہم میں نے کیا ہے، یہ نظام درہم برہم تو نے کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نگاہ دوڑائی تو قریش سے ایک شخص تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابن زیاد، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دینا، لیکن مجھے تھوڑی سی اس سے بات کرنا ہے، اور میں اپنی یہ بات پوشیدہ رکھوں گا، اس سے اکیلے میں مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مسلم بن عقیل نے اسے بلایا، تھوڑی دور پر لے گئے، اسے کہنے لگے دیکھو میری 3 باتیں ان کو پوری کر دینا، آپ قریش سے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ پوری کر دیں گے۔ اس نے کہا، اب وہ بھی ابن زیاد کا کتا ہی تھا، اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میری بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے کچھ پیسے ہیں، وہ مجھے فلاں انسان کو یہاں دینے ہیں، وہ آپ دے دینا، تقریباً 700 درہم یا کچھ کم یا زائد درہم تھے۔ کہا ٹھیک ہے اور بتاؤ؟ کہا دوسری بات تو یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے دفن کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے اور کیا ہے؟ کہا تیسری میری بات یہ ہے کہ میرے بھائی حسین اپنے پریوار کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ماحول ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تم ایسا کرنا کہ میرے بھائی حسین
खत लिख देना और उनसे कहना कि वो वापस चले जाए, ये 3 मेरी बातें पूरी कर देना। उसने कहा ठीक है। और वो इब्ने ज़ियाद का कुत्ता वहाँ पर ये बातें सुन रहा था और आके उसने इब्ने ज़ियाद के सामने और सबके सामने ये बातें इनकी ज़ाहिर कर दी और हंसने लगे ये लोग। देखो देखो, ये अकेले में जाके ये बातें कहना चाहता था, इसने ये बातें कही। मुस्लिम बिन अकील खड़े हुए हैं। अब इब्ने ज़ियाद की और मुस्लिम बिन अकील की आपस में बातें हुई। इब्ने ज़ियाद आग बबूला हुआ, गुस्सा हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कहा अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, अब तुम्हें कत्ल करवाया जाएगा। अपने कुत्ते को उसने हुक्म दिया, अपने गुलाम को बुलाया और जल्लाद से कहा कि जाओ छत के ऊपर ले जाओ और इनके सर को तन से जुदा कर दो, सर को धड़ के साथ नीचे फेंक दो ताकि इनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जब पकड़ के ऊपर ले जा रहे थे तो आप अपने भाई हुसैन को याद कर रहे थे कि उनका परिवार और वो लोग आते होंगे, उनके साथ क्या हाल होगा। छत पे ले जाया गया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को उनके सर को उनके धड़ से जुदा कर दिया गया और सर जिस्म के साथ ज़मीन में नीचे फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत, इधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। अब इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उरबा को कत्ल करवाने के लिए बाज़ार के बीचों बीच में भेजा कि बाज़ार के अंदर हानी को कत्ल किया जाए। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए थे, इतनी दहशत फैल गई थी, लोग इतना डर गए थे कि अपने दरवाजे लोगों ने बंद कर दिए थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब हानी को उसने अपने जल्लादों के साथ बाज़ार में भेजा और कहा बीच बाज़ार में हानी को कत्ल किया जाए। हानी को जब ले जाया जा रहा था, हानी पुकार पुकार कर कह रहे थे कि उस दिन सारे लोग जिन्होंने गवर्नर हाउस को घेर लिया था, अब कहाँ गए मेरे कबीले वाले, कहाँ गए मेरे परिवार वाले, कहाँ गए मेरे रिश्तेदार, आओ मुझे बचाओ आके, मुझे कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। हानी ने अपने हाथों को छुड़ाया और चीख चीख कर कहने लगे कोई तो मुझे कोई लकड़ी दे दो, कोई हड्डी दे दो, कोई तलवार दे दो, कोई डंडा छड़ी दे दो ताकि मैं अपनी जान बचा कर यहाँ से निकलूं। कोई करीब नहीं आया तो बाजार के बीचों बीच में इब्ने ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके 2 कज़न भी आए हुए थे, उनके 2 बच्चे भी आए हुए थे। अब इसने हुक्म दे दिया, ऐलान करवा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जो भी अपने घर में जगह देगा, जो भी अपने घर में छुपाएगा, उसका हाल भी हानि की तरह होगा, उसका हाल बहुत बुरा होगा, याद रखो। सारे लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद किए हैं। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने शायद तुवा के घर या उससे पहले अपने बच्चों को काजी शुरे के यहाँ पर छुपा दिया था। काजी शुरे ये मुहिब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। जब इनको ये ऐलान की खबर हो, इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया है कि जो भी बच्चों को अपने घर में रखेगा उसको कत्ल करवा दिया जाएगा, उसकी गर्दन को काट कर उसके जिस्म को उसके दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। दहशत फैली हुई थी। काजी शुरे ने क्या किया, अपने बेटे असद को कहा जाओ, एक काफिला जा रहा है, उसी काफिले के साथ बच्चों को कर दो, ये चले जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी। अगर ये यहाँ रहेंगे तो फिर इनकी जान को खतरा है। असद काजी शुरे का बेटा, इसने उन दोनों बच्चों को लिया और जो काफिला जा रहा था वो ढूंढने लगा और उस काफिले तक पहुंच गया। लेकिन गर्द नजर आ रही थी, उन दोनों बच्चों को वहीं पर कर दिएगा, देखो वो गर्द नजर आ रही है, ये काफिला जा रहा है, तुम लोग जल्दी से जाओ इस काफिले में शामिल हो। छोटे बच्चे थे, दौड़ते रहे, भागते रहे, काफिला ढूंढते रहे। थोड़ी देर के बाद वो गर्द जो थी वो खत्म हो गई, काफिला निकल गया, जो वो काफिला नहीं हुआ। जब काफिला चला गया तो दोनों गले में हाथ डालकर रोने लगे, एक दूसरे से कहने लगे भाई अब हमारी जान नहीं बच पाएगी, अब हम मार दिए जाएंगे, अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे। बाबा को तो कत्ल कर दिया इन लोगों ने, अब हमको भी कत्ल कर देंगे, हमको भी मार देंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को याद कर करके ये बच्चे बाहों में बाहें डाल कर ये तड़प रहे थे। वहीं पर ये एक पेड़ था, उसमें अंदर थोड़ी सी जगह थी, खोखला था, उसी के अंदर ये दोनों बच्चे छुप गए।
वहीं पर एक मुहिब्ब अहले बैत की एक बांदी थी, आगे पानी भरने लगी। पानी भर के जब जाने लगी तो उसने देखा कि ये दो शहजादे बहुत आखिर वो कौन है? वो इनके करीब आई और कहने लगी कि तुम कौन हो? ये चूंकि डरे हुए थे बच्चे, ये बोले नहीं। कहा सुनो, तुम हमें बताओ तो तुम हो? उन्होंने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उसने ये सुना, कहा तुम डरो नहीं, मेरी जो मालकिन है जिसकी मैं बांधी हूँ ये अहले बैत से है। हम तुम्हें तुम दोनों को उनके पास ले चलते हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें जालिमों से बचा लेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को वो बांदी, वो लड़की अहले बैत से जो मोहब्बत रखने वाली उसकी मालकिन थी उसके पास ले गई। कहा ये हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं, और ये बेचारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि इनके कत्ल के लिए इब्न ज़ियाद ने अपने सिपाही दौड़ा रखे हैं। आप जैसे ही उसने सुना तो खुशी में उसने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। कहा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ ले आई। वो औरत उस खातून ने एक कमरे में रख दिया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, खाना बनाया, अंदर कहा तुम लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर मत आना और आवाज़ मत करना, क्योंकि मेरा जो शौहर है वो इब्न ज़ियाद का कुत्ता है, इब्न ज़ियाद का खादिम है, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम दोनों को कत्ल कर देगा। हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आप बाहर मत निकलना और बोलना मत। उन्होंने कहा ठीक है। बिस्तर लगा दिया, दोनों भाइयों को उस पर सुला दिया। अब इधर शाम हुई, रात हुई तो हारिस, ये उसी का शौहर, आ गया, थका बहुत था, बीवी से कहने लगा जल्दी खाना लगाओ, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये बताइए आप थक क्यों गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? कहा मुझे मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने परेशान करके रखा है, पूरे दिन से उनको ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि घोड़ा हमारा मर गया, मुझे पैदल उनको ढूंढना पड़ा। इसकी बीबी ने कहा आखिर तुम उनको ढूंढ क्यों रहे हो? हमें उनको ढूंढना है ताकि हमें इब्न ज़ियाद इनाम इकराम से नवाजे, वो बच्चे हमें मिल जाएंगे तो इब्न ज़ियाद हमें इनाम इकराम से नवाजेगा। वो उसकी बीवी कहने लगी शर्म नहीं आती कि तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को कत्ल करना चाहते हो? मरने के बाद रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? क्या तुम्हें मरना नहीं, क्या तुम्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है? उसने कहा मुझे समझाओ मत। हारिस ने कहा मुझे समझा मत, खाना लगा, तेरी समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, क्योंकि इसका दिल सियाह काला हो चुका था, इसका दिल सियाह हो चुका था। अब इसे किसी की नसीहत काम नहीं आ रही थी। उसकी बीवी ने उसे लाख समझाना चाहा लेकिन वो नहीं समझा। कहने लगा मुझे सोना है और कल फिर उन दोनों बच्चों को तलाश करना है, उन दोनों बच्चों को ढूंढना है, और वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनके कत्ल कर दूँगा और सर कटे हुए सर इब्न ज़ियाद के सामने ले जाऊँगा। अब इधर बच्चे सो रहे थे, चूँकि उसी के घर में बच्चे थे, सो रहे थे। शौहर तो जल्लाद है, बीवी मुहिब्ब अहले बैत से है, बीवी बच्चों की हिफाजत कर रही है, ये जान लेने पर तुला हुआ है, ये कत्ल करने पर तुला हुआ है। बच्चे सो रहे थे गहरी नींद में, उन्होंने ख्वाब देखा, दोनों चीख कर उठे। एक भाई दूसरे भाई से कहने लगा भाई मैंने ये ख्वाब देखा है कि हमारे अब्बा मुस्लिम बिन अकील और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली, हज़रत फातिमा और हज़रत हसन एक जगह जमा है, और हुजूर हमारे अब्बा से कह रहे हैं, हज़रत मुस्लिम बिन अकील से कह रहे हैं चले आए अपने बच्चों को जालिमों के बीच छुपड़ाए। ये ख्वाब उन्होंने देखे। तो दूसरा भाई कहने लगा कि भैया हमने भी यही ख्वाब देखा है, ऐसा लगता है कि अब हम कत्ल कर दिए जाएंगे, अब हम मार दिए जाएंगे। दोनों गले मिलकर रोने लगे, सिसकियां भर भर के रोने लगे। जब ये सिसकियों की आवाज़, ये रोने की आवाज़ हारिस के कानों तक पहुंची, वो खट से ये बैठ गया और अपनी बीवी को बुलाया, कहा हमारे घर में ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा आपको तो पता है हमारे घर कोई बच्चे नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं, ये किसी और के घर से आ रही है। उसने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे घर से ही ये बच्चों की आवाज़ आ रही है। उसने देखा किधर से आ रही है, जिस कमरे में वो दोनों बच्चे थे उसी कमरे को वो खोलने लगा, देखा दोनों बच्चे सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं। जब दोनों बच्चों को देखा तो कहा अच्छा पूरे दिन से जिससे हम तलाश कर रहे हैं वो हमारे ही घर में है, हमारे ही घर में पूरे दिन से हम उसकी तलाश
तलाश में हमने अपने घोड़ों को, जिसकी तलाश करते करते हमारा घोड़ा मर गया, हम पैदल चले, इतने थक गए और वो बच्चे हमारे घर। गुस्सा हुआ, बच्चों को मारना शुरू किया, दोनों बच्चों के हाथों को बांध दिया, दोनों बच्चों को बांध दिया। बच्चे कितने मासूम थे, 6-7 साल। इसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा अल्लाह के लिए आप ऐसा ना करें, खुदा के लिए ऐसा ना करें, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। उसने हाथ जीटा, किवाड़ में लड़ी, गिर गई। हारिस ने बच्चों के हाथों को बांधा और दोनों को एक में बांध कर तो थप्पड़ मारे और उसी बिस्तर पर निकाल दिया। अब पड़े रहो यहीं पे, सुबह होने तक इंतजार करो, सुबह हम तुम्हें कत्ल करेंगे और तुम्हारे कटे हुए सर इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएंगे। बच्चे दहशत में आ गए, बच्चे चीख चीख कर रोने लगे, सिसकियां ले लेके रोने लगे, एक दूसरे से कहने लगे भैया कल कत्ल कर दिया जाएगा, आपको जब कत्ल किया जा रहा होगा तो हम कैसे देख पाएंगे, हम जब कत्ल हो रहेंगे तो आप कैसे देखेंगे। दोनों सिसकियां ले लेके रो रहे थे। इधर उसकी बीवी ने काफी हिम्मत लगा दी बचाने, लेकिन बचा नहीं पाई। सुबह हुई, उसने गेट खोला, दोनों की जुल्फें पकड़कर कढ़ेलता हुआ बाहर को लाया। बीवी ने उसकी कमर पकड़ा, माफ कर दो इन्हें, मत मारो इन्हें, अल्लाह के लिए छोड़ दो। उसने फिर उसको चीटा दिया, वो फिर दीवार में लड़ी, बेहोश होकर गिर गई। दोनों को उसने बिठाया, जब बिठाया ऐसे ले जा रहा था जैसे कोई सामान ला फुरात के किनारे ले गया, नहरे फुरात पर ले गया। ले जाने के बाद दोनों बच्चों को उतारा, दोनों बच्चों की रस्सियां खोली, अपनी तलवार को निकाला, जहर में बुझा हुआ खंजर निकाला बच्चों के सामने और उनको दिखाने लगा कि अब तुम्हें कत्ल किया जाए। छोटे बच्चे खंजर देखकर, तलवार देखकर डर गए कि इसी से अब हमें कत्ल किया जाएगा। भागती दौड़ती उसकी बीवी वहां पर भी आ पहुंची, काफी रोकने की कोशिश की, उसने तलवार से उसे जख्मी कर दिया। वो तलवार से जख्मी हो गई और चीखने लगी, कराहने लगी। इधर इसने तलवार से छोटे भाई को कत्ल करना चाहा तो बड़े भाई ने कहा अल्लाह के लिए मुझे पहले कत्ल करे, मेरे भाई को पहले कत्ल ना करे, इसलिए कि मैं अपने भाई के कत्ल को नहीं देख, अपने भाई को कत्ल होते हुए नहीं देख पाऊंगा, मुझे पहले कत्ल। छोटा भाई चीख के कहने लगा नहीं नहीं, भैया को कत्ल होते मैं भैया को कत्ल होते नहीं देख पाऊंगा, पहले मुझे कत्ल करें। हारिस कहने लगा तुम दोनों की सलाह की मुझे जरूरत नहीं है, तुम दोनों को कत्ल कर दो। जालिम ने अपनी तलवार खींची, दोनों बच्चों को शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद, ये दोनों शहजादे कत्ल हो गए, शहीद हो गए। ये बहुत खुश हुआ, मैं तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को कत्ल करके इतनी ज़्यादा देखेगा, खुश हो जाएगा। इसने उनके धड़ों को फुरात में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया और उनके सरे मुबारक को ज़ियाद के पास गया। इब्ने ज़ियाद के पास ले गया, कहने लगा देखो आपके दुश्मनों के सर लाया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरे दुश्मन कौन है, दिखाओ कौन है ये। उसने कपड़ा हटाया तो वो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर था। कहा देखो ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर हैं। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना सुना आग बबूला हुआ, गुस्सा हुआ, कहने लगा तूने इन्हें कत्ल क्यों किया, तूने इनके सरों को यहाँ पर लाया, इनको जिंदा क्यों नहीं लाया। उसने कहा आप खुश नहीं, आप तो चाहते थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए। इब्ने ज़ियाद बोला कि बेवकूफ़, मैंने तो सिर्फ पकड़ने का हुक्म दिया था, मैंने अमीरुल मोमिनीन यजीद को ख़त भेजा है कि बच्चे दोनों मिल गए हैं, आप चाहें तो उनको आपके पास ज़िंदा भेज दिया जाए। अगर यजीद ने इन दोनों बच्चों को ज़िंदा तलब कर लिया फिर हम कहाँ से देंगे। तो तूने इतना बड़ा जुर्म किया कि मेरी बगैर इजाज़त कत्ल कर दिया। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ इसको वहीं पर कत्ल कर दो, हारिस को भी वहीं पर कत्ल कर दो। इसका अंजाम इसको भुगतना पड़ा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब चूँकि हज़रत इमाम हुसैन उधर से अपने काफ़िले के साथ अपने परिवार के साथ रवाना हो गए थे, आपके साथ आपके 3 बेटे थे, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उस टाइम बीमार थे।
दूसरे साहबजादे हज़रत अली अकबर थे, हज़रत इमाम हुसैन के तीसरे फर्जंद जिन्हें अली असगर कहते हैं वो भी थे। हज़रत अली असगर ये शीरख्वार बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे, और हज़रत इमाम हुसैन की एक शहज़ादी सकीना थी, और हज़रत इमाम हुसैन की 2 बीवियाँ आपके साथ थीं, एक शहरबानो और दूसरी हज़रत अली असगर की वालिदा। हज़रत इमाम हसन के 4 नौजवान शहज़ादे भी थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 5 बेटे हज़रत अब्बास, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत मोहम्मद, हज़रत जाफ़र, ये हज़रत इमाम हुसैन के साथ थे। हज़रत अक़ील के 4 फर्जंद हज़रत इमाम हुसैन के साथ थे। एक तो मुस्लिम बिन अक़ील, क्योंकि आप पहले ही शहीद कर दिए गए, और दूसरे हज़रत अब्दुर्रहमान, तीसरे हज़रत अब्दुल्ला, और चौथे हज़रत जाफ़र, और हज़रत जाफ़र तैयार के 2 पोते हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद